Hello friend, today I am going to talk on the chapter taken from Hornbill, Landscape of Seoul, written by Natalie Roy. The chapter is about how different Chinese art form is from European art form. Here writer uses two different stories to make contrast. European art is about reproducing actual view, whereas Chinese art is about not creating real landscape. European art is an artist's way to let viewer show exactly what you want them to see in the landscape. But Chinese art is artist spiritual and inner voice where you can travel from any point and it lets viewer create a path for their imagination. They can go by there from any point. So that is the Chinese art. Now let us come to the landscape of Seoul in a detailed summary. In this chapter, writer contrasts two different forms of art, Chinese art and European art, by using two different stories. In China, during 8th century, my dear friend, Tang Emperor Zhong ordered a painter to come and his name was Wu Daoji to decorate a wall in a palace. Upon seeing the wall painting, Emperor started noticing outer appearance of painting. But painter drove his attention to cave at the foot of mountain. The painter told Emperor that he would take him inside. That was the power of painter. The painter entered the cave and entrance closed behind him. As soon as painter clapped his hand, the painting on the wall was disappeared and so as the painter. In another story, my dear friend, a painter wouldn't draw an eye of Dagron as he feared that Dagron would fly out of painting. In another story, to represent a European art form, a master blacksmith falls in love with a painter's daughter. The father did not approve of him as because of his profession. Blacksmith sneaked into his painting studio and painted a fly on painter's latest panel. The fly seemed so real that painter tried to hit at first before realizing it was in painting. The painter at last accepted him as a trainee in his studio and blacksmith became a student of his father-in-law. Then blacksmith married the painter's daughter and later became one of the famous painter of his time. These stories reveal as how art form is believed to be followed in two different regions in the world. In Europe, artists want viewer to see real viewpoint by borrowing his eyes. The art must be perfect and must be illusion, likeness. Whereas in China, the artist doesn't paint a real one, but uses his inner and spiritual voice to create abstract piece. Viewer can enter the painting from any point and can travel according to his own imagination. So that was different from the European art. The artist want viewer to enter his mind and create a path of its own. So this concept is called Shen Shui, which means mountain water. When they are used together, they make word landscape, right? So this is the overall story of this landscape of Seoul. Now come to the Hindi. नथाली टू रॉय द्वारा लिखित लैंडस्केप ऑफ सोल, इस बारे में चीनी कला का स्वरूप यूरोपीय कला से कितना अलग है वो दिखाने की कोशिश की है। लेखक इस विपरीत बनाने के लिए दो अलग अलग कहानी का उपयोग करते हैं। यूरोपीय कला एक वास्तविक दृश्यों को पुनः पेश करने के बारे में है, जबकि चीनी कला एक वास्तविक परिदृश्य नहीं बनाने के बारे में है। यूरोपीय कला एक कलाकार का तरीका है जो दर्शकों को वास्तविक में वही दिखाता है जो वह परिदृश्य में देखना चाहता है। चीनी कलाकार की आध्यात्मिकता और आंतरिक आवाज है जहां आप किसी भी बिंदु से यात्रा कर सकते हैं और यह दर्शक को उनकी कल्पना के हिसाब से रास्ता बना सकते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग दिखाने की कोशिश की इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं लैंडस्केप ऑफ सोल।
इस अध्याय में लेखक ने दो अलग अलग कहानियों का उपयोग करके कला के दो रूपों को पेश किया है, एक चीनी कला और यूरोपीय कला। राइट, कैसे दोनों अलग अलग है दोस्तों। चीनी कला चीन के उस समय में 8वीं शताब्दी के दौरान तांग सम्राट जुआन जोंग एक चित्रकार को बुलाते हैं, ऑर्डर देते हैं। उस चित्रकार का नाम है ऊ दाओजी को महल में एक दीवार को सजाने के लिए बुलाया था। दीवार की पेंटिंग देखकर सम्राट ने पेंटिंग के बाहरी स्वरूप को देखना शुरू कर दिया, लेकिन चित्रकार ने उनका ध्यान पहाड़ी के एक तलहटी के स्थित गुफा की ओर आकर्षित किया। चित्रकार ने सम्राट से कहा कि वह उसे अंदर ले जाएगा। चित्रकार गुफा में घुस गया और प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। जैसे ही चित्रकार ने अपने हाथ की से ताली बजाई, दीवार पर लगी पेंटिंग हट गई। और ऐसे ही चित्रकार ने भी चित्रकार के साथ भी हुआ। अन्य एक और कहानी में मेरे दोस्तों, एक चित्रकार डेगरन की आंख नहीं खींचता है, नहीं बना पाता है, क्योंकि उसे डर था डेगरन पेंटिंग के बाहर उड़ जाएगा और डर पैदा करेगा। राइट, एक और अन्य कहानी में यूरोपियन कला का स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मास्टर लोहार एक चित्रकार की बेटी के प्यार में पड़ जाता है। उसके पेशे के कारण पिता उस को मंजूरी नहीं देता है। लोहार अपनी पेंटिंग स्टूडियो में घुस गया और चित्रकार के नवीनतम पैनल पर एक मक्खी चित्र के रूप में आ गया। मक्खी इतनी वास्तविक लग रही थी कि चित्रकार ने पेंटिंग में आने से पहले ही उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे बाद में वास्तविकता का परिचय हो गया। चित्रकार ने उन्हें अपने स्टूडियो में प्रशिक्षक और ट्रेनी के रूप में स्वीकार किया। लोहार ने चित्रकार की बेटी से शादी की, बाद में अपने समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बन गया था। इन कहानियों से पता चलता है कि दुनिया के दो अलग अलग क्षेत्रों में कला के रूप का अनुसरण कैसे माना जाता है। यूरोप में कलाकार चाहता है कि दर्शक उसकी आंखों को उधार लेकर वास्तविक दृष्टिकोण को देखे। कला परिपूर्ण होनी चाहिए और भ्रम समानता होनी चाहिए। जबकि चीन में कलाकार एक असली पेंट नहीं करता है, लेकिन उसको अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक आवाज का उपयोग करता है, और दर्शक किसी भी बिंदु से पेंटिंग में प्रवेश कर सकता है और अपनी कल्पना के अनुसार यात्रा कर सकता है। ये आवाज और आंतरिक जो है उसके द्वारा दर्शक कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी जा सकता है। कलाकार चाहता है कि दर्शक उसके दिमाग में प्रवेश करे और अपना रास्ता खुद बनाए। इस अवधारणा को शांशुई कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी का पानी। जब वे एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो उनको लैंडस्केप शब्द बन जाता है उसके लिए। तो दोस्तों, दो अलग अलग कहानियों को, दो अलग अलग कलाओं को यहाँ पर पेश करने की कोशिश किए इस लैंडस्केप ऑफ सोल। चैप्टर वैसे बहुत ही अच्छा है, स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह लगेगा और आप समझ जाओगे दोस्तों। आइए देखते हैं डिटेल, मतलब चैप्टर को पढ़कर। राइट, थैंक यू।